Good morning, students. Till now, in Unit 3 of Discrete Mathematics, we have covered matrices and some portion of determinants. And in today's lecture, we'll be covering determinants and its applications in detail. Before starting the determinants, let's see this set of equations. A1x plus b1y is equal to c1. A2x plus b2y is equal to c2. This can be represented in this matrix form. This equation can be represented in matrix form like this. A1, B1, A2, B2, one matrix, then XY, vector matrix of variables, not vector matrix, vector of variables, and C1, C2, vector of constants. This we have done in earlier lectures as well, uh, that how we can represent an equation or set of equation in matrix form. That is the same thing now. Uh, Now this system of equations has a unique solution or not is determined the number a1 b2 minus a2 b1, and this is what, this is the determinant. So given a set of equations and we have to find whether it has a unique solution or not, and if we want to find the solution as well, then determinant will help us out. This number a1 b2 minus a2 b1, this is what, this is determinant of a matrix, and this has wide application. Determinant has wide application in engineering, science and economics, social studies. So we'll study it in depth. In this unit, we'll be covering determinant, minor, cofactor, application of determinants in finding the area of triangle, adjoint, inverse of a square matrix, and solving system of linear equations having consistent or inconsistent solution. Means linear equations को हम solve करेंगे using matrices and using determinants, and we'll find whether it has a unique solution or it has multiple solution or it does not have a solution at all. Right now, coming to the determinant. So this was the requirement. Why do we calculate determinant? Now determinant. To every square matrix Aij of order n, we can associate a number called determinant of square matrix. This may be thought of as a function. यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मैट्रिक्स ए इस तरीके से है तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर इसको डेट ऑफ ए हम बोलेंगे, और फॉर डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है. अगर आपकी वन ऑर्डर मैट्रिक्स है, वन बाय वन, तो जो एक ही एलिमेंट है उसके अंदर और वही आपका डिटर्मिनेंट है. अगर आपकी टू बाय टू मैट्रिक्स है तो आप कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? इस तरीके से निकालेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं. a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12. यहाँ तक बहुत सिंपल है, ये एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो. अगर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं, इसको इवेलुएट करना मतलब ये डिटर्मिनेंट की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 2 जा 4 माइनस -4, so it will be 4 plus 4 8. Similarly for this, x into x square minus x plus 1 into x minus 1, and x plus 1 into x minus 1 is x square minus 1. Minus is outside the bracket, so x square minus x square plus 1, it is equal to 1. Till order 2, very simple. Now determinants of matrix of order 3. This we have discussed in earlier lecture as well, that how we can calculate directly, or here is the second method how we can find the determinants of order 3
using the second order determinant. Second order determinant. This is known as the expansion of determinants along a row or column. 3 by 3 matrix है, तो it is having 3 rows and 3 columns. So we have 6 alternatives for calculating the determinant. Row 1 को हम रो अलोंग द रो 1 एक्सपेंशन कर सकते हैं, अलोंग रो 2 कर सकते हैं, अलोंग रो 3 कर सकते हैं, और अलोंग कॉलम 1, अलोंग कॉलम 2 और अलोंग कॉलम 3 हम एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू नो द स्टेप कि हमें करना क्या है, हमें ध्यान क्या रखना है ऐसा करते हुए. फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. एक्सपेंशन along first row R1. This is our matrix A having elements A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33. Now we are doing expansion along row 1. How will we doing it? This is row 1. So multiply first element A11 of R1 by minus 1 raised to power 1 plus 1. मीन्स ये जो आई जे वैल्यू है 1 1 माइनस 1 की पावर हमें ये करनी है 1 प्लस 1. ये लेना है मल्टीप्लीकेशन में, हमें लेना है A11 यानी कि ये वाला एलिमेंट हम लेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट्स की पावर माइनस 1 पे लगेगी, मल्टीप्लीकेशन में ये एलिमेंट आएगा, और ब्रैकेट में और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा आपका सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यूज आएंगी? अगर हम इस एलिमेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो आप इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इन रोज और कॉलम्स को. तो जो आपका बच गया है ये 2 by 2 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स बच गया, इसका डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे लेंगे. सिमिलरली फॉर A12 के लिए पावर माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू दिस एलिमेंट A12 इंटू अगेन मैट्रिक्स लेंगे. अब उसका ऑर्डर क्या होगा, कौन से वाली लेंगे? अगर हम A12 की बात कर रहे हैं तो हम ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट्स बचे A21, A31, A23, A33. इनका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम सेकेंड ऑर्डर का. Similarly, for third element it will happen A13 minus 1 की पावर हो जाएगी आपकी 1 plus 3, then A13 into again same method. A13 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको छोड़ के बाकी जो बचा वो एलिमेंट्स हम ले लेंगे. अब डिटर्मिनेंट्स फाइनली क्या होगा, जो हमने ये तीनों चीजें एक साथ ली इनका समेशन कर देंगे. मीन्स पहले जो लिया था वो प्लस सेकंड A12 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग प्लस A13 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग. तो जब इसे निकालेंगे तो हमारा ये आएगा A11 बाहर है इनटू A22 A33 माइनस A32 A23. मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन माइनस. अब यहाँ माइनस सिंबल क्यों आया? बिकॉज जब हम माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 कर रहे हैं यानी कि माइनस 1 की पावर 2 कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है माइनस 1 की पावर 2 क्या होगा आपका प्लस 1 होगा. तो प्लस 1 तो यहाँ मेंशन करने की भी जरूरत नहीं थी. अब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 मीन्स माइनस 1 की पावर 3 कर रहे हो. माइनस 1 की पावर 3 क्या होगी नेगेटिव, मतलब माइनस 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, सो दैट विल बी माइनस 1. इसीलिए यहाँ पे हमारा जो साइन है वो माइनस आया है. देन इसका डिटर्मिनेंट्स A21 इंटू A31 माइनस A23. देन अगेन प्लस साइन है. प्लस साइन क्यों है कि क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 है, मतलब माइनस 1 की पावर 4 है, तो वो प्लस हो गया. Again A13 and then determinants of this second order matrix. So in most cases you will see you do not need to calculate this every time.
this one -1 की पावर, बिकॉज इन मोस्ट केसेस इन ऑर्डर 3 यू विल फाइंड फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी पावर आपकी हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, और सेकंड में नेगेटिव आएगा, और थर्ड में आपका अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्टरनेटिंग साइंस आपके लगेंगे मोस्ट केसेस में, पर फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इस मेथड को यूज करते हुए चलें। अब अगर इन्हीं को आगे अंदर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, जो ये हमारा निकला है इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये फाइनल आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, नाउ इसी तरीके से ये हमने रो 1 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंशन किया। आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेफरेंस में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। Hence, expanding a determinant along any row or column gives the same value. Remarks: for easier calculation, we shall expand the determinant along that row or column which contain maximum number of zeros. जब आपकी मैट्रिक्स के अंदर जीरोज हैं तो आप कोशिश करो कि जहां जहां किसी रो में या कॉलम में, जैसे मान लो एक रो में एक जीरो है और किसी में सभी जगह एलिमेंट है, तो आप प्रेफरेबली उस रो को उठाएं, या किसी कॉलम में दो जीरो हैं तो आप उसको उठाएं, क्योंकि जीरो से क्योंकि एलिमेंट से तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है। जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो जीरो ही हो जाता है, तो आपका जो नॉन जीरो एलिमेंट बचेगा खाली उसकी कैलकुलेशन आपकी बचेगी। While expanding, instead of multiplying I -1 की power I plus j, we can multiply by +1 or -1 if I or I plus j is even or odd। कि आपको हर बार इसको लिखना और फिर करने की बजाय आप ये देख लो I और j की जो वैल्यू है I plus j मिलके इवन हो रहा है या ओड। इवन हो रहा है तो प्लस साइन लगा दो, ओड हो रहा है तो माइनस साइन लगा दो, राइट। Now there were some lines missing. Okay, now let A is this matrix, B is this matrix, then it is easy to verify that A is equal to 2B. Also determinant of A -8 है, ठीक है, determinant of B -2 है। Observe that determinant of A is 4 into -2, दैट इज 2 स्क्वेयर बी। यहाँ पे आप देखो ये चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो आपका सिंपल कि ए मैट्रिक्स है, आपकी इधर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 4 0। तो हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू 2b। हम इस मेथड से तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग एक रूल है वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है, a का डिटर्मिनेंट निकाला, क्या हुआ 2 into 0 minus 4 into 2, that is -8। 1 into 0 minus 2, that is -2। So determinant of a is equal to -8, और -8 को हम लिख सकते हैं 4 into -2। 4 is what, 2 raised to power 2, and -2 is what, determinant of b, determinant of b। So the rule is determinant of a is equal to 2 raised to power n of determinant of b, where n is equal to 2 is order of square matrix a and b। In general, if a is equal to kb, अगर दो मेट्रिसेस ऐसे हैं कि a is equal to kb means b मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपको a मैट्रिक्स मिल रही है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। जैसे कि इस केस में है कि हमें a इज इक्वल टू 2 भी मिल रहा है, टू टू को b को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें a मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये ड्राइव हो रहा है कि a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 रेज टू k रेज टू पावर n
इंटू बी का डिटर्मिनेंट k रेज टू पावर n, मतलब जो स्केलर है वो, और n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है, अगर आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 हो तो k रेज टू पावर 3 हो जाएगा, राइट। नाउ one simple example of determining the determinant of matrix of order 3 by 3. We have matrix this is the matrix and symbol show that we have to find the determinant, and it is represented using triangle symbol. So we have to find the value of this triangle. Now, note that in third column 2 zeros are there. हमने बात की थी कि जब आपके मैट्रिक्स में जीरोज होंगे तो हमें एक्सपेंशन उसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग करनी चाहिए जिसमें ज्यादा जीरो। तो यहाँ कॉलम 3 में आप देखिए दो एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम C3 के हम रेफरेंस में एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो इस रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो ये हमारा बचा, इसको हम लेंगे। तो हम अब जो 4 एलिमेंट है इसका अगर हम ऐसे लिखें A11 A12 A13 A13, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 प्लस 3 का सम कितना हुआ 4, तो -1 की पावर 4 हुआ, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। फिर ये एलिमेंट लिया हमने 4 इंटू ये वाली हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ले लिया, देन माइनस ऑफ इस एलिमेंट के रेफरेंस में किया, दिस एलिमेंट इज 2 3 A23, 2 प्लस 3 5, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। और ये चीज आप करना चाहो कर लो, अदरवाइज -0 लिख दो और ये वाला +0 लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली 0 ही हो जाना है। सिर्फ फर्स्ट को हमें सोल्व करने की जरूरत है, 4 इंटू -1 इंटू -12 एंड दैट इज 4 इंटू -13 एंड दैट इज -52, राइट। वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, this is your matrix and we have to find determinant. Now हर एक रो और हर एक कॉलम में एक बार जीरो आ रहा है, तो आप किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हो। इस केस में अलोंग R1 किया है, तो पहला एलिमेंट जीरो है R1 का, तो 0 इंटू जो भी है आपका 0 हो गया, देन माइनस ऑफ साइन अल्फा और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू दैट, देन माइनस ऑफ कोस अल्फा। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि माइनस क्यों आया, हमने फर्स्ट रो के हिसाब से किया है, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वैसे अगर हम देखें तो ये आपका है जो ये है आपका कोस अल्फा, ये आपका एलिमेंट नंबर A33 है, नहीं सॉरी, एलिमेंट इज A13, एलिमेंट इज A13। सो अगर आप 1 प्लस 3 को देखो तो 4 हो गया, तो हमारा -1 की पावर 4 वहां से तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन वहां नेगेटिव सिंबल क्यों है, क्योंकि दिस वैल्यू इज इट सेल्फ नेगेटिव, दैट्स वाई इट इज देयर माइनस कोस अल्फा इनटू, देन उसके उस रो और कॉलम को छोड़ के जो बाकी आपका सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बचा वो आप ये लोगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में। यहाँ तो 0 हो ही गया है, ये आपका हो गया माइनस साइन अल्फा बाहर है इनटू ये किया तो 0 हो गया, माइनस कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, देन माइनस कोस अल्फा, ये आपका माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, ये आपका पॉजिटिव साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, -0 आ गया। इनको फर्दर खोल रहे हैं तो हमारा ये साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0 आपका आ गया है। अब इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक में एक एक्स वेरिएबल है, डिटर्मिनेंट दोनों के इक्वल दे रखा है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट करके और एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, साथ साथ आपको करना है, आप अपनी जैसे एक्सरसाइज 4.1 आ गया, आप एज ए पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स,
In this section, we'll study some properties of determinants. These properties are true for determinants of any order, for order 2 or 3 or 4. So first of all we are doing प्रॉपर्टी नंबर 1. इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को और भी इजीली सोल्व कर सकते हैं. कई सारे कॉलम्स और रोज में जीरो एलिमेंट लेके आ सकते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशंस काफी आसान हो जाएं. तो प्रॉपर्टी 1 व्हाट इट सेज, the value of the determinant remain unchanged if one second if its rows and columns are interchanged. Value of determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. Means यहाँ पे क्या किया है हमने कि कोई भी रो या कॉलम आप इंटरचेंज करते हो तो आपकी एक रो और एक कॉलम इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. पहले यहाँ पे ये आपकी था ये डिटरमिनेंट के लिए इसका आप निकाल रहे हो तो कैसे करोगे, अलोंग रो 1 किया हुआ है a1 इंटू दिस देन माइनस a2 इंटू आपका ये वाला और ये लिया. उसके बाद बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स वी गेट द डिटरमिनेंट. अब क्या किया, सॉरी यहाँ पे ये वाला रूल नहीं है कि एक रो और एक कॉलम को, आपने क्या कर दिया, रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दिया. तो a1 b1 ये जो आपकी कॉलम थी फर्स्ट कॉलम इसको बना दिया फर्स्ट रो. सेकंड कॉलम है आपकी a2 b2 c2 इसको बना दिया सेकंड रो. और थर्ड कॉलम को बना दिया थर्ड रो. तो जब आप इनको इंटरचेंज कर देते हो रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रो बना देते हो और फिर इसको इवेलुएट करके देखोगे अगेन तो आप देखोगे कि बोथ हैव द सेम रिजल्ट. सो रोज और कॉलम्स अगर आपको इंटरचेंज करनी पड़े और फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का तो यू विल फाइंड दैट इज सेम. डेल इज इक्वल टू डेल वन. डेल जब था जब आपके जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी डेल वन तब है जब आपने इंटरचेंज कर दिए हैं रोज और कॉलम्स आपस में. It follows from above property that if A is a square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose, where A transpose is equal to transpose. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा. क्यों, अभी हमने देखा कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है जब आप रोज को कॉलम बना दो कॉलम्स को रोज बना दो तो आपका क्या होता है, ट्रांसपोज निकलता है. तो अब हमने देखा जब हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का कर रहे हैं डिटरमिनेंट और फिर रोज कॉलम को इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो वो दोनों सेम आ रहे हैं. मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए. If Ri is ith row and Ci ith column, then interchange of row and column will symbolically written as Cia interchange with Ri. आपको किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करना है तो उसके लिए सिंबल है कि आप डबल एरो से उनको कि हमने ये इंटरचेंज किए, आप इस तरीके से शो कर सकते हो. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग वेरीफाइड यूजिंग एग्जांपल. ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पहले डेल कैलकुलेट किया है, ये डेल कैलकुलेट किया है पहले. उसके बाद इंटरचेंज की है रोज एंड कॉलम. नाउ 261 इज बिकम आवर फर्स्ट रो and minus 305 column has become our second row and 54 minus 7 has become our third row. And now we have calculated determinant. In both cases it is minus 28. In both cases it is minus 28. Now second property, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. If any two rows and columns of determinant or columns, आपने एक पहली रो के साथ दूसरी रो चेंज कर दिया, मतलब पहली रो को दूसरे नंबर पे कर दिया और दूसरी रो को पहले नंबर पे, या सेकंड कॉलम को
थर्ड बना दिया और थर्ड को सेकंड बना दिया। रो या कॉलम को, सिर्फ रो को रो के साथ बदल रहे हो या कॉलम को कॉलम के साथ बदल रहे हो तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज होगा। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। ये आपका पहले की तरह ही ले रखा है डिटर्मिनेंट जिसका निकालना है वो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड रो। फर्स्ट एंड थर्ड रो इंटरचेंज किया है। पहले फर्स्ट रो में क्या था, A1 A2 A3, अब क्या हुआ वो थर्ड में चला गया और जो थर्ड रो था C1 C2 C3 वो फर्स्ट रो बना दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस ऑफ डेल्टा आ रहा है। वी डिनोट द इंटरचेंज ऑफ रोज बाय, अगर हम एक रो को दूसरी रो से चेंज करना, RI RJ, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट को 3 से किया है तो हम लिखेंगे R1 डबल एरो R3, R1 R3 हमने ये किया है। या कॉलम को किया है तो कॉलम नंबर लिख देंगे C1 C3। एग्जाम्पल से ये प्रॉपर्टी भी अब हम देखेंगे। ये अर्लियर एग्जाम्पल ही है जिसमें हमारा डेल -28 आया था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, interchange R2 and R3 means this one we are doing this operation, R2 interchange R3, रो 2 नीचे आ जाएगी 604 एंड रो 3 अब आपकी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी 15 - 7 एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट। Now what is the value of determinant? That is 28. So that is the negative of the earlier value. Earlier value was -28. So negative of that is 28. So second property is verified. Now third property. These properties are useful in solving various problems. If any two rows, or property number 3, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. कोई भी दो रो एक जैसी हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड रो अगर हम देख रहे हैं सपोज, तो उसका पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा, अगर इस तरीके से हर एक एलिमेंट दो रो का या दो कॉलम्स का सेम है तो आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा। we interchange the identical rows of determinant and then del does not change, however the property 2 it should change। ये कह रहा है कि ये हम प्रॉपर्टी 2 से भी कह सकते हैं। जब हम उनको इंटरचेंज करेंगे, जब हम उनको इंटरचेंज करेंगे तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट दूसरे वाला डिटर्मिनेंट माइनस आना चाहिए। इफ वी इंटरचेंज द आइडेंटिकल रोज, अगर हम आइडेंटिकल रोज को ही चेंज कर देंगे देन डेल डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये आपका एक एग्जांपल है 3 2 3 और नीचे थर्ड रो भी है 3 2 3। जब हम इसका डेल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 0। अगर हम इन रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज करेंगे तब भी ये 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस डेल तो नहीं आया क्योंकि 0 नेगेटिव होता ही नहीं। ठीक है, तो डेल इज नॉट नेगेटिव ऑफ डेल, डेल इज एक्चुअली 0 इन दिस केस। तो दो रो जब भी आइडेंटिकल होंगी आपकी मैट्रिसेस की, जैसे इस केस में है, या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होंगी तो आपका डेल जो है, डेल हेयर इज रिप्रेजेंटिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट विल बी 0। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, if each element of row or a column of determinant is multiplied by a constant value k, then its value get multiplied by k। किसी एक रो को, जैसे हमारी ये मैट्रिक्स थी, इसकी पहली रो को आपने हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, k a1 k b1 k c1, तो आपको जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी आपकी टोटल, वो आपकी k डेल हो जाएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही
के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स को, सिंगल में ही हो जाएगा। हर एक में करोगे तो मतलब 2 रो में करोगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, 2 3 रो में करोगे तो के क्यूब आ जाएगा। ये सिंगल रो या सिंगल कॉलम के लिए है। मीन्स अगर आपकी मैट्रिक्स ऐसे है कि आपने फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। By this property, we can take out any common factor from one row or one column. If corresponding element of any rows of determinant are proportional, then its value is 0. एक और इसमें है कि अगर देखो ये है A1 A2, ये हमारी एक रो है A1 A2 A3 और थर्ड रो है KA1 KA2 KA3। इसमें क्या हुआ, जो अभी ऊपर प्रॉपर्टी की है उससे हम क्या कर सकते हैं, के को बाहर निकाल सकते हैं। के को बाहर निकाल लेंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो सेम ही होगा। तो फिर के जब बाहर निकल जाएगा तो थर्ड रो क्या बन जाएगी, A1 A2 A3 विच इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो A1 A2 A3। इन दैट केस डिटर्मिनेंट विल बी 0। सो व्हेनेवर या तो आपकी रोज आइडेंटिकल हो या फिर वो रेशियो में हो, A1 डिवाइडेड बाई के A1 क्या आया 1 बाई के। और अभी इसको मैं तुम्हें लिख के दिखाती हूँ। अगर हम रेशियो निकालें इसका और इस एलिमेंट का, मतलब फर्स्ट और थर्ड रो के हर एक एलिमेंट का, तो A1 डिवाइडेड बाय के A1 इट इज इक्वल टू 1 बाय के। और ये हर एक एलिमेंट के लिए रेशियो सेम है आपका। मीन्स A1 divided by KA1 is equal to A2 divided by KA2 is equal to A3 divided by KA3 is equal to 1 by K. It is equal to 1 by K. So either the elements of row, any two row or any two column are same, or they are in proportion or in same ratio, then the determinant value will be 0. We see this property with the help of an example. You can directly use the property to find determinants if you remember them. This is 102 18 36. This is our first row, and third row is 17 3 6. You see 17 6 ja 102, 3 6 ja 18, 6 6 ja 36. So ratio is either हम R1 by R2 करें, R1 by R3 करेंगे तो हमारा 1 by 6 आएगा, और R3 by R1 करेंगे तो 1 by 6 आएगा। सो दे आर इन प्रॉपर रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इन प्रोपोर्शन। सो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, सब में 6 कॉमन लिया तो 6 को फिर हमने बाहर निकाल दिया पहली वाली प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 3 से। और प्रॉपर्टी 4 से क्या है कि अगर आइडेंटिकल हैं तो ये 0 हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, राइट। Only one or two property left. Afterwards will be coming to the next exercise. If some or all elements of row or column of determinants are expressed as a sum of sum of two terms, then the determinants can be expressed as sum of two or more determinants. क्या करें, अगर आपका किसी रो या कॉलम का एलिमेंट्स, किसी रो या कॉलम का एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स हैं, जैसे A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2, दो टर्म्स का सम है हर एक एलिमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. determinant को हम दो determinants का सम में कर सकते हैं, कैसे, A1 A2 A3, A1 A2 A3, ये वाला ये वाला ये वाला, और नीचे की रोज आपकी सेम रहेंगी। एक तो ये डिटर्मिनेंट, और दूसरा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यहाँ पे हम लेंगे दूसरे डिटर्मिनेंट में, और नीचे की रोज सेम रहेंगी। इस तरीके से
अगर किसी रो में या किसी कॉलम में हर एक एलिमेंट एक से ज्यादा टर्म्स का सम है तो हम उन टर्म्स को सेपरेट करके दो अलग डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। इसको अगेन वेरीफाई आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया ही हुआ है, एक्सपेंड करके सिमिलरली अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड किया है, तो ये आपका आया है। जैसे पहले आपका ये आया है, दिस इज व्हाट, this is equivalent to this determinant of this is this one is equivalent to this one, and this one नीचे वाला, this one is equivalent to this one, and this is what, this is our right hand side of the expression we want to prove. So left hand side is equal to right hand side. This we can see with the help of an example for better clarity. See, here we have A, B, C, A plus 2x, two terms are there, B plus 2y, two terms are there, C plus 2z, two terms are there. In row 2, we have two terms. So, we have A, B, C, A plus 2x, B, so we'll write it equivalent to A, B, C, and then first term A, B, C, and then 2x, 2y, 2z. And xyz. Now these two are identical rows, so this determinant becomes 0, and this C2, sorry, R2 and R3 of this matrix, they are in proportion, so this will also become 0 using property 3, property 5, I think. So this way you can easily solve the sum. Okay, thank you for today. The rest will proceed in the in our next lecture. Thank you.